Swamiji has joined us. The morning, please. I'll just spotlight him. Namaste, Swamiji. स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है? हाँ, आ रही है। अभी आ रहा है? Yeah. So if you have any question, you can type down in the chat box, put it in the chat box, वहाँ पे डाल सकते हैं। और the current time and how you can come out of your ailment, I'll give you a general kind of an information regarding that. So अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना? Nowadays it's rainy season. So what happens? The whole environment is covered with cloud, isn't it? So the whole ecosystem gets closed. इसको बंद कर हो जाता है ना सारा. So if you are closed, if you sleep in a room which is closed from all side, no ventilation, where will it impact? How do you experience that closeness? What is the first thing that you experience in that closed atmosphere? Difficulty in breathing. Right? Or it will impact your chest region more. It will have to, yes, suffocated means difficulty in breathing, and then your chest will get impacted because it wants to move. Isn't it? आपकी छाती मूव करना चाहती है मगर बंद कर दिया है. तो बारिश का मौसम में तो बंद कर दिया सारा. Isn't it? So what will happen? Your body would want to do a lot of things, but if you make effort, then you will feel more of breathlessness in terms of your body aches and pains. दर्द जो है बढ़ जाएगा. So बारिश के मौसम में in rainy season aches and pains increases because the whole environment is covered and your body feels difficulty in doing any work. काम करने में ज्यादा जोर लगाएंगे तो तकलीफ आएगी. So what is the recommendation in the rainy season in our culture? पारंपरिक तौर पे क्या recommendation है रेनी सीजन के लिए? सावन के महीने के लिए क्या रिकमेंडेशन है? और इसको क्या कहते हैं? शिव का महीना कहते हैं. राइट? सो वेरी शिवा, वेरी शिवा. It is inside. He is inside you. Right? So in rainy season you should not go out for any kind of a pilgrimage. सारा पिलग्रिमेज बंद हो जाता है. तीर्थ यात्रा बंद, एक जगह टिकना है. Now what do you do at one place? Eat light. भोजन हल्का करें because your body will feel difficulty in digesting the food also. एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा है और दिक्कत हो रहा है ना, तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. So eat light food, and because your focus cannot be outside, the energy flow outside is blocked. बाहर की तरफ में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया तो कहां जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए. So nature gives you this opportunity to be with your inner core. शिव क्या है? चैतन्य है. चैतन्य जिसे बोलते, आप बोलते हैं आई, मैं बोलते हैं ना. कैसे ये मैं का एहसास हो रहा है? व्हाट इज दैट फैक्टर विच गिव्स यू दिस बीइंग, सेंस ऑफ बीइंग? होने का एहसास कौन दे रहा है? चैतन्यता जो आपके अंदर है. द अलाइवनेस, द कॉन्शियसनेस विच इज देयर विद इन यू. बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू से ओ आई. सो ये आई है ना, उसके पीछे जो है वो शिव तत्व.
The Chaitanya factor is called as Shiva Tattva. So there is an opportunity when the energy is not flowing out, you can pull it in. So कैसे करेंगे? Sadhana. So what is the recommendation in this season? You do lot of bhajan, kirtan, dhyana, sadhana. This is the recommendation. Eat light and be with yourself. Be with yourself. जो आपके अंदर सत्य है उसकी संगत करें. सत्य संग, उसकी संगत में रहे. नाउ हैविंग सेड इट, ये बोल दिया मैंने, ये बताया आपको, बट ये स्पिरिचुअल सेशन तो है नहीं. वी डोंट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. ओनली इन पूर्णिमा सेशन वी टॉक अबाउट लिटिल स्पिरिचुअलिटी. So if you are interested, please join the Purnamasi session. Every month we do a Purnamasi session from 9:30 till midnight. अगर आपको लगता है कि कुछ अंदर की बात भी जाने तो वहां पे जरूर ज्वाइन कीजिए. Now we are talking about body and mind. Body and mind are not different things. शरीर और माइंड जो है ना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती. Now, your pain is more associated with your mind and psychology than your body. ठीक है, आप ये बात जरा ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं. आपके जो दर्द हैं, यू नो, द पेन आर ऑफ 3 काइंड. 3 तरीके के दर्द होते हैं. वन इज फिजिकल पेन, है ना. This is called as bhautik pain. Bhautik shul. Then the second pain is, or bhautik or daihik, you can call it. Daihik means related to deha, body and mind. So bhautik shul. Then the second factor is daivik shul. Daivik shul. You want to do something in life, you work hard for it and you don't get the required, whatever you want, that kind of a result. You want your mother-in-law to love you, but you know it is impossible. So that is called as Daivik shul. You do something wrong. आप कुछ गलत करें आज. You know who will suffer the most for your wrongdoing? Your third generation. आपके बच्चों के बच्चे सबसे ज्यादा आपके कारनामों से नुकसान होगा उनका. इसको पितृदोष कहते हैं. This is पितृदोष because you are all connected. At least in your lineage, you know you are connected. So मैं तो हमेशा आपको ये बात बोलता रहता हूं, प्लीज डोंट डू कर्म दोष. कर्म दोष ना करें. यू विल सफर और नॉट, मे बी यू वोंट बी एबल टू रियलाइज इट. आप उसको रियलाइज भी नहीं कर पाए वो कर्म दोष कैसे लगेगा, मगर आपके बच्चों के बच्चों को तो ऐसा लगेगा. और आपको मालूम है, एक बच्चे को दर्द होता है तो दादा, नाना, दादी, नानी सबसे ज्यादा दुखी होती है. सो कर्म दोष जितना हो सके अपने हिसाब से अवॉइड करें. एंड व्हाट इज कर्म दोष? व्हाट इज कर्म दोष? जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज कर्म दोष. एक लाइन में आपको बता रहा हूं मैं. What is karma dosh? Just thinking about yourself will get you into karma dosh. और इसके बहुत सारे ब्रांचेस निकाले जा सकते हैं. So in this culture, we always say, you have to survive, you have to do something for yourself, but balance it with पुण्य कर्म. पुण्य कर्म के साथ में उसको बैलेंस करें.
औरों के बारे में भी सोचें। किसी चीज को फ्री में नहीं लेना। फ्री में लोगे तो कर्म दोष लगेगा। नेवर, नेवर। आई टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये ना हमारे जो जो एबोरिजिनल्स है ना, हर जगह के, पृथ्वी में हर जगह के, दे नो इट वेरी वेल, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो ये आदिवासी जिनको आज हम बोलते हैं, दे आर नॉट आदिवासी, they are one of us, but we want to actually create lot of differentiation between people. लोगों के बीच में भेदभाव हम ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं. So in MP there was an Adivasi belt and there was a railway line passing through it. So I had to go long back, I'm talking about 35 years back. I had to pass through that area एंड पीपल विल टेल स्टोरीज. वो एक स्टोरी बताते, कहते हैं वहां पे आदिवासी जो होते हैं लोकल, वो लूट लेते थे पैसेंजर्स से, डकैती करते थे. बट वो क्या है, फ्री में नहीं लेते थे. सो हाउ? सो दे टेक योर मनी एंड वॉट एवर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर जो है वो ले लेंगे, बट वो फिर आपको तीर मारेंगे पाँव में. लोग कहते थे आपको दे तो दिया, फिर आप मार क्यों रहे हो? कहता आपने दे दिया, हमने डराया, आपने दे दिया तो फ्री का हो गया ना. हमने कहा मेहनत किया, तो तीर मारने से जो हमने मेहनत किया, आपका खून निकला ना, दैट इज एन एक्सचेंज वैल्यू. नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. इवन क्रिमिनल्स न्यू कि कर्म दोष लगता है, तो मेहनत करके लेना है. मगर सबको फ्री में चाहिए ना. कर्म दोष तो लगा ही हुआ है, ऐसा लगता है. You know, if you give some sadhu something, he'll not take it for free. He will bless you. He will give a little part of your energy, जिससे कि आपका दोष निवारण हो जाए. Touching feet of a sadhu has a, साधु का लॉस होता है एक्चुअली बहुत, अगर रियल साधु है तो. अगर रियल योगी है तो आप अगर आके पांव छुएंगे ना, तो उसका लॉस है, बहुत लॉस है. बिकॉज वेन यू टच फीट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एनर्जी एक्चुअली फ्लोज टुवर्ड्स यू, क्योंकि उसका पांव जो है उस पर उसका बस नहीं है, तो वो एनर्जी आपको मिलेगा, फ्लो आपकी तरफ में. उसका तो नुकसान हो गया, आप थोड़ा बहुत कुछ दे दोगे उसको. नो वैल्यू ऑफ व्हाट ही हैज अर्न्ड इन मेनी मेनी लाइफ टाइम्स. कई जन्मों में जो उसने बटोरा है, जो पाया है, वो पुण्य आपको मिल जाता. दैट इज वाई इन दिस कल्चर वी से कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो भी कम से कम कुटुंब और साधु के लिए कुछ ना कुछ करिए. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए. सो कर्म दोष ना ले. आपसे कोई कुछ मांगता, आपने मांगा किसी को, तो उसको दीजिए जरूर कुछ. आई एम नॉट सेइंग जस्ट मनी. एक्सचेंज के बिना ना स्वास्थ्य होगा, ना लक्ष्मी होगी. हमारा देश अमीर था किसी टाइम पे, बहुत रिच था. क्यों? क्योंकि हम ये फंडामेंटल्स जानते थे. सो योर पेन, आपका जो दर्द है ना, ऐसा मत समझिए इट्स जस्ट फिजिकल पेन. विथ एवरीथिंग अराउंड यू विच योर ग्रैंड पेरेंट्स डिडंट इवन इमेजिन. आप आज जो खाते हैं, आपके दादा शायद इमेजिन भी नहीं करें ऐसा भोजन करने का. मगर मन में वो प्रसन्नता, खुशी नहीं है, दर्द है. सब कुछ है, गाड़ी में चल रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं, सारी सहूलियत है, मन में खुशी नहीं है.
शरीर में दर्द है, वन ऑफ द रीजन इज दैवीय शूल। दैवीय शूल। आपके रिलेशन कैसे हैं? अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, दैवीय शूल। आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, दैवीय शूल। आपके कुलदेव कहां हैं? कुलदेवियां कहां हैं? दैट इज योर जेनेटिक एनर्जी। आपने सबको गड्ढे में डाल दिया। ऐसे समझिए, पूर्वजों को आपने गड्ढे में डाल के मिट्टी डाल दिया। हाउ विल यू लिव? दिस इज जस्ट लाइक क्लाउड्स। चारों तरफ बादल घिर गए, बंद कर दिया सब कुछ। अब जिएंगे कैसे? ये काम ना करें। कैसे वो कर्म दोष आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक भावना, सबके लिए अच्छी भावना तो रख सकते हैं, सबके लिए अच्छी भावना तो रख सकते हैं। हमारा देश तो इकोनॉमी का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल मालूम है क्या? जिसको आजकल प्रमोट तो किया जा रहा है, मगर वो इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रिच होने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वसुधैव कुटुंबकम। हेल्दी होने का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वसुधैव कुटुंबकम। आप अपने लिए बहुत अच्छा सोचें, मगर किसी के लिए खराब नहीं सोचें। दैवीय शूल, कर्म दोष आएगा। हमेशा किसी ने 100 रुपया दिया ना, 10 रुपए ऊपर चढ़ा के दे दो। आपको गेहूं चाहिए, क्या करना पड़ेगा? आप पृथ्वी को गेहूं का दान दें, और पृथ्वी आपको एक दाने के बदले 100 दाने निकाल के देगी। हाँ या ना? यही तो दैवीय सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो जो चाहिए वो देना पड़ता है। खुशी चाहिए, खुशी देना पड़ेगा। धन चाहिए, धन देना पड़ेगा। वैभव चाहिए, वैभव की कामना करनी पड़ेगी। हेल्थ आप सोचते हैं ना बस ये ऑर्गन, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो खाते हैं, आपके पूर्वज नहीं खाते थे ऐसा, मगर आपका हेल्थ नहीं है, उनका तो हेल्थ अच्छा था आपसे। सो देर इज लॉट मोर टू हेल्थ। दूसरा शूल, दैवीय शूल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा शूल, द थर्ड पेन इज आध्यात्मिक शूल। दैहिक और भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शूल, यू आर अटेन एनीथिंग इन लाइफ। आप कितना भी कामयाब हो जाए लाइफ में, आफ्टर अ सर्टेन एज आपको सब कुछ नीरस लगेगा। आपको फूड की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, फिजिकल क्रेविंग, सेक्सुअल क्रेविंग खत्म हो जाएगी, लग्जरी की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। एक टाइम आने के बाद में सब कुछ बेमानी लगेगा। जो मजा आपको पहले आ रहा था जिस चीज में, वो अब नहीं आएगा। ये होने ही वाला है, सबके साथ में होना। एवरीबडी, विथ एवरीबडी, दिस इज गोइंग टू हैपन। मे बी आर विजन इज वेरी शॉर्ट, हम सोचते बहुत छोटा है। So it is going to happen. So you must get into an experience which is more than physicality. शारीरिक एक्सपीरियंस और मानसिक एक्सपीरियंस से भी ज्यादा बड़ा कोई एक्सपीरियंस का दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा परेशान हो जाएगा। एंड लाइफ जब खत्म होने आएगी, when you will come to the end of your life, you would not want to go, because you will feel you have not lived life fully. अरे पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाए, अभी तो और, अभी तो और, अभी तो और। मगर उस समय, एट दैट टाइम, टाइम इज अप। When the time is up, nothing can stop you. But what will you take, or what you have created in this life is something. If you created certain capabilities in life, that capability will go with you
and your next life will be according to what capability you have achieved in this life. So the only thing that will go with you. और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमने सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते, आज नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, your genetics, the impression of your genetics will go with you. Is it not the time to empower your genetics? But what have you done in your life? आपने जीवन में क्या किया आपने उसको एम्पावर करने के लिए अपने जेनेटिक्स को? इसी को हम कुल कहते हैं. जेनेटिक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ कुल. ये कुंभक आप अपने जेनेटिक्स को एम्पावर कर रहे हैं. हाउ मच टाइम विल यू टेक? दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. So don't you want to empower your genetics? करना चाहिए ना. सही गलती कैसे भी करके आप प्रोग्राम में आ गए, आपको क्या मिलने वाला आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं. You are just looking at your body. But if you empower yourself, your body will be better. Any case, 100% guaranteed. How much better it will become in how much time is the question of what is the deviation or destruction you have created in your body. So you have taken medicine for 30 years. Do you think you will become fine in 3 months? It will take time. The only question is of time. एक ही समय का ही एक क्वेश्चन. सो अभी देखिए इतनी सारी हम बातें करते हैं, बट इफ यू जस्ट लुक एट दोज थिंग्स. आई वॉज डूइंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन yesterday. एक क्वेश्चन आंसर सेशन में कर रहा था yesterday, एंड somebody said because of my sugar level I get into dizziness. मुझे डिजीनेस हो जाता है. ध्यान से सुनिए, लिसन इट वेरी केयरफुली. So, how will this help? And I've been doing it for 1 month or so. He was a new person, so but my dizziness is not going. So I said, okay, what is your sugar level? 250, right? Take 10 people with 250 sugar level. 10 लोग खड़े कीजिए 250 शुगर लेवल के साथ में. तो क्या सभी को डिजीनेस आ रहा है? नहीं आ रहा. One people will get into dizziness, some other people will get into some other problem. सबको 10 बंदों को सेम शुगर लेवल से डिजीनेस नहीं आता. मगर आप क्या सोचते हैं? What do you think? Because of my sugar level, I'm getting into dizziness. And why are you thinking that? Because somebody has created a narrative for you. Somebody said. किसी डॉक्टर ने बोल दिया आपको, या गूगल में पढ़ लिया आपने, मगर आपने ऐसे सोचा नहीं कि 250 वाले 10 बंदे खड़े कर रहे हैं. 10 people are there. Not everybody gets into dizziness. So that means dizziness is not happening because of sugar level. It is happening because you are very intolerant towards sugar. There are people who are tolerant towards sugar and nothing happens with whatever raised sugar level. I can give you many examples where 400 sugar level and they come out of infection fast, glaucoma ठीक हो गया, neuropathy ठीक हो. Why? Because they increase the tolerance. अभी आपको दर्द ज्यादा क्यों हो रहा है? Because you have lost your tolerance. झेलने की क्षमता कम हो गई है कि नहीं हो गई है? Just think about it. If you would have been living 50 years back in some village, just to have a little rice on your plate, how much work you would have to do. थोड़ा भोजन थाली पे लाने के लिए क्या काम करना पड़ता आपको 50 साल पहले? हाँ,
And I'm telling you something very, very interesting that I watched in my grandmother. I watched my grandmother. तो उनको क्या करना पड़ता था? सावन का महीना आया ना, so they have to plow the field. खेत को तैयार करेंगे. Then they will sow paddy. फिर धान का छिड़काव करेंगे, धान की उपज का तैयारी करेंगे. फर्स्ट स्टेप, when the pods will be this small, so ट्रांस बेडिंग, एक जगह से निकाल के अलग 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 उसको रोपा करना होता है. देन दे लुक आफ्टर द पैडी फील्ड, उसमें से उसको जो वीड्स हैं वो निकालते रहेंगे. एंड दे यूज्ड टू हैव कैटल आल्सो, तो उसका खाद बना के फिर दे मेक मैन्योर एंड पुट इट इन द फील्ड. उसके बाद में जब वो पकने लग जाएगा तो रात में खेतों में सोना पड़ता, क्योंकि एक चिंगारी ऑन गॉन. देन दे विल कट इट, हार्वेस्ट इट, टेक इट ऑन देयर हेड, वॉक किलोमीटर्स, देन दे विल थ्रैश इट. फिर धान निकल जाएगा. दे विल बॉइल इट फॉर सम टाइम एंड दे विल ड्राई इट. फिर ओखली में ऐसे कूटते हैं, धान कूटेंगे, देन द राइस विल कम आउट. एंड आई यूज्ड टू एक्चुअली गो एंड जस्ट डू दिस पाउंडिंग विथ माय ग्रैंडमदर. शी वुड बी कंप्लीटली फ्रॉम टॉप टू वेट बॉटम, हर साड़ी वुड बी टोटली वेट. बट व्हाट वाज द मैजिक देयर? शी वुड बी सिंगिंग सम सॉन्ग. आज तो आपका पसीना जरा सर पे आ जाएगा तो आप परेशान हो जाते हैं. नो एसी, नथिंग, नो फैन. सी द टॉलरेंस लेवल ऑफ पीपल. सो वी क्रिएटेड, हमने सोफिस्टिकेशन क्रिएट कर दिया, आराम क्रिएट कर दिया, मगर शरीर को तैयार नहीं किया फॉर दिस लाइफस्टाइल. वी डिडंट क्रिएट द टॉलरेंस. तो ये लाइफस्टाइल ही हमको खत्म कर रही है, ये भोजन ही हमको खत्म कर रहा है. और जिसको 100 साल से मेडिसिन बोल रहे हैं उसने तो पूरी दुनिया खत्म कर दी. सो पेन इज नॉट ऑलवेज फिजिकल. पेन इज मोर साइकोलॉजिकल. इट हैज मोर implication in your mind. So people who are suffering, who are feeling more pain and more difficulty, this is because of the season and hidden infection. Season और hidden infection की वजह से होता है. If you are doing kumbhak, you'll see the infection will not show its symptom on your body if you are doing kumbhak, but it will be there because of, see, which is the greater force, you or environment? कौन ज्यादा बड़ी शक्ति है? आप ज्यादा बड़ी शक्ति हैं या आपके चारों ओर जो प्रकृति है वो ज्यादा बड़ी शक्ति है? कौन है ज्यादा बड़ी शक्ति? द एनवायरमेंट इज अ बिगर फोर्स. सो इवन टू हैंडल इट यू विल हैव टू इंक्रीज योर, एटलीस्ट योर पुश. वो जो और आपका टॉलरेंस कम हो गया उसको बढ़ाना तो पड़ेगा. कुंभक विल डू दैट, बट स्टिल एनवायरमेंट विल रिमेन अ बिगर फोर्स. यू कांट बिकम बिगर देन द एनवायरमेंट एंड द यूनिवर्स. Now we have deviated the environment. Environment ही खराब करते हैं. भोजन जो खा रहे हैं, it's genetically modified, hybrid, inorganic process. That has become a risk. And over top up करने के लिए, grand top up करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं बचपन से, bombarding the body with chemicals. Can you avoid those things? Can you completely reverse what you have done in 50, 60, 70, 80, 100 years? But if you increase the tolerance, your problems, in your experience, your problems will become less. But ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम आएगा नहीं. एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, कुंभक करेंगे. दो चीजें बता रहा हूं. एनवायरमेंट इन दिस सीजन, एसिड रिफ्लक्स विल इंक्रीज because your digestion is weak. The second thing is, if your body gets into a lot of heat, then also you will feel the impact of acid more. So when you are doing kumbha, please do it gently.
इस सीजन में जेंटल करें, बहुत आराम से करें. यू डोंट हैव टू, हमने आपको टारगेट दिया, बट यू हैव टू रीच आउट टू दैट और रीच दैट टारगेट इन 6 months 1 year एट योर ओन पेस. अपनी स्पीड से उस टारगेट तक पहुंचे. तो अगर गर्मी बढ़ गई तो ठंडा करना पड़ेगा, है ना. सो इफ यू आर फीलिंग मोर हीट, you can write down to your mentors, they'll give you cooling down process. But in this season, please have your meal light. 2 बार भोजन करें. For people who are above 40 45, that उससे ऊपर है ना, तो please have 2 times meal. That's it. अगर आप 8 घंटे तक का गैप रखेंगे ना, यू विल सी योर क्रॉनिक डिजीज विल स्लोली इवेपोरेट. डायबिटीज ठीक हो जाएगी आपकी, थायराइड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपकी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेलो डाउन हो जाएगा, चला जाएगा. एनीवे यू आर डूइंग कुंभक, सो यू आर इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, तो ये प्रॉब्लम आपकी जाएगी. बट वी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट अ पेन किलर पिल. मुझे बताइए, पेन किलर के अलावा कोई तो दवाई काम नहीं करती. 100 साल में एक इंसान बता दीजिए जो डायबिटीज ठीक हो गया जिसका दवाई लेके. इन 100 years, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन, और अ थायराइड पर्सन, और अ पर्सन ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और अ पर्सन ऑफ अस्थमा. 70% of your problem are chronic in nature. अगर हम इन्फेक्शन हटा दें, दैट टू वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं होती, मालूम है ना आपको. तो वायरस के लिए अगर आप कुछ भी लेंगे तो काम नहीं करता, वो तो केवल क्या बोले उसको. अच्छा, 70% of your problem is chronic. That means medicine cannot cure it. When it has become something like acute condition आ गई है, अगर क्योंकि आपके शरीर की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई, acute condition आ गई है, managing it with some kind of a chemical, maybe चलो उसको थोड़ा leverage दे देते हैं, but it has to be short management, है ना. एकदम से कुछ ज्यादा बढ़ गया, उस समय आपको अगर स्टेरॉइड दे दिया, पेन किलर दे दिया, उसको कम करने के लिए इंजेक्शन डाल दिया, ठीक है, उस समय के लिए ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. But taking pill throughout your life for managing your chronic disease, neuromusculoskeletal disorder, ये तो ठीक ही नहीं होता. दवाई से ही तो खराब ही होता जाता है. Is not a right approach. ये सही अप्रोच है. तो जितना हो सके अपने शरीर को रिकवर करने की शक्ति आपकी बढ़ानी पड़ेगी, वो कुंभक से आएगा. आप जेंटली कीजिए. दूसरी बात, इस मौसम में थोड़ी गर्मी बॉडी में जल्दी बढ़ जाता है, हल्का भोजन कीजिए, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना. आइडिया ना रखें कि नहीं मुझे रॉ ही खाना है, आई हैव टू हैव रॉ फूड ओनली. नो 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 नो, इट मे एग्रीवेट योर कंडीशन. कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोटीन देखा है अपनी लाइफ में? किसी ने प्रोटीन नहीं देखा. कार्बोहाइड्रेट किसी ने देखा? हैज anybody of you has seen carbohydrate? You have not seen it. You create an idea. किसी ने बोला आपको चावल में ज्यादा होता, केला में होता, तो आप कह रहे थे आलू में होता, और भी सारी चीजें होती है उसमें. You haven't seen carbohydrate. You haven't seen vitamin. किसी ने विटामिन देखा? नहीं देखा. मगर भोजन के बारे में जब भी बात करें, whenever you talk about food, you talk in these terms: protein, carbohydrate, this and that. तो मैं आपको अंधविश्वासी बोल सकता हूं? ग्रीको रोमन अंधविश्वास, आप शब्द ग्रीको रोमन बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रीको रोमन अंधविश्वासी हैं आप. और भी अच्छा वर्ड निकालो, साइंटिफिक अंधविश्वासी हैं आप, मगर हैं तो अंधविश्वासी जी, अंधविश्वासी. और जो साक्षात है, व्हाट इज इन योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज इन योर एक्सपीरियंस? I want to eat something sweet.
है ना, मुझे ना कुछ तीखा मिर्च वाला खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, isn't it? What your body is saying, you don't trust your body. आपने अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया है। जब कोरोना मारने के लिए फीवर करता है तो आप डोलो पैरासिटामोल खा लेते हो ना। यू डोंट अलाउ द बॉडी टू गेट इन टू हाई टेम्परेचर। उल्टी होगी, वेन एवर योर बॉडी वॉन्ट्स टू प्यूक यू विल पॉप इन अ पिल एंड स्टॉप द प्यूकिंग। उल्टी बंद कर देते हैं, दस्त होगा दस्त बंद कर देंगे। आपका शरीर कोई भी मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करता, क्या आपको मालूम है? If you are taking 500 milligram of paracetamol, you know how much you need? 3 to 4 to 5 maximum, 3-4 milligrams. 500 क्यों दिया जाता है? Because your liver will actually push out 400, more than 495 milligram. मगर उसको ओवरलोड करेंगे और इसको साइंटिफिक नाम दिया, पता है क्या नाम दिया? इस टॉर्चर को हमने एक नाम दिया। अच्छे अच्छे नाम से टॉर्चर करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अंग्रेजी में टॉर्चर करने में सबसे अच्छा लगता है हमको। इसको नाम दिया है फर्स्ट लीवर बाईपास। अच्छा लग रहा है सुनने में ना, बट दिस इज द टॉर्चर टू योर लिवर। टॉर्चर को अच्छा नाम देने से टॉर्चर खत्म नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब ये, प्लीज डोंट टॉक अबाउट समबडी एल्स, कोई क्या कह रहा है। पीएम हेगड़े बहुत अच्छे हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। मैं तो आपके कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है क्या? एम आई टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट जो आपको नहीं समझ में आता शायद? So let's not talk about protein. Let's talk about fruits. Let's talk about vegetables. What you want, what your body demands. क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? नहीं, प्रोटीन खाना। What protein? You don't know protein. You're talking in terms of protein. You don't know protein. Do you think your body takes any protein that you will give? अभी और बीमारी के बारे में बता रहा हूं आपको, समझिए। योर बॉडी नेवर टेक्स एनी प्रोटीन। ये प्रोटीन का हवा हटा दो। योर बॉडी ब्रेक्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स एंड मेक्स इट्स ओन चेन। तो उसको जो जरूरत होगा वो ले लेगा, वो बना लेगा। वो आप जो प्रोटीन देंगे ना, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके बॉडी को, एंड इट विल क्रिएट थायराइड एंड डायबिटीज एंड व्हाट नॉट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। Go on the Google and search hypernutrition. आप कह रहे हैं ना बहुत लोग काम कर रहे हैं, हाँ काम करेंगे, लोग अच्छे ही होते हैं। Everybody as a person is good. ओके, और आगे जाके देखिए, ये जितना भी गेम है प्रोटीन का, इसका मार्केटिंग गिमिक। If you take a lot of protein, what will happen? The proteinous waste in your body will grow and it will damage your kidney. So your creatinine level will rise. Your uric acid will rise. Is it happening or not? कितने डायलिसिस सेंटर खुले हैं, जाके देख लीजिए, गूगल करके देख लो। Please stop talking in those terms. If you take more protein, your body will 100% get damaged. अच्छा, फ्रूट्स में ज्यादा प्रोटीन होता है कि स्टेम में ज्यादा, लीव्स में ज्यादा प्रोटीन होता है? और ग्रास में ज्यादा प्रोटीन होता है? स्टेम्स, लीव्स एंड ग्रास हैज मोर प्रोटीन. Please eat those things. Are you designed to eat those things? क्या आपका डिजाइन है हाई प्रोटीन लेने का? आपका डिजाइन नहीं, आप खाते ही नहीं है प्रोटीन।
नेचुरली अगर आपको जंगल में छोड़ा जाए तो भी आप घास नहीं खाओगे, यू विल फाइंड आउट फ्रूट्स। सो अपना डिजाइन, नेचुरल डिजाइन तो समझें। दिस इज साइंस, नॉट सेइंग एनीथिंग। इफ आई टॉक अबाउट any damn thing that nobody knows, that is not science. So please come to the sense of life. When you were given birth, when you were born, you were embedded with sense of life. आपका शरीर सब जानता है। आप हार्ट बीट करवाते हैं, डू यू मेक द हार्ट बीट? लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, any function? No. Who does it? Your body has intelligence. Yes or no? Only when you interfere in the intelligence of nature, you destroy it. हमने प्रकृति डिस्ट्रॉय किया ना, प्रकृति अपने आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं करती अपने आप को। ये कौन समझेगा? If on the name of science we are destroying human body, नेचर, तो क्या वो साइंस होता? इन द लास्ट 100 years वी हैव नॉट गॉन इवन वन स्टेप फर्दर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अब हमने हर चीज में आगे बढ़े, हम केवल हेल्थ में आगे नहीं बढ़े हम। इनफैक्ट वी हैव गॉन 10 steps बैकवर्ड्स। सो कभी तो सोचना पड़ेगा हमको कि गलती हो गई, कोई डायरेक्शन तो गलत है ये बिल्कुल। तो अभी क्या करना है? लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू लाइफ, बिकॉज you are using your mind and studying something, you are getting trained into whatever you have been taught. That is why Harvard University did a research and it found that 25 years of education gets your intelligence down by 70% irrevocably. पच्चीस साल का एजुकेशन 70% बुद्धिमानी आपकी खत्म कर देता है, जिसको वापस नहीं किया जा सकता। सो प्लीज एजुकेशन आपका जो है ना, उसको थोड़ा साइड में रखिए। सेंस ऑफ लाइफ आपके अंदर है ही, आप लोग बुद्धिमान हैं ही। एनीवे यू आर इंडियन, तो आप तो वैसे ही बहुत बुद्धिमान है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने की जगह एजुकेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू सेंस योर बॉडी, यू विल नॉट हैव टू आस्क should I eat meat, should I eat dairy, should I eat this, should I eat that, because your body is saying I'm not feeling comfortable with this. किसी का स्टैंडर्डाइजेशन छोड़ दीजिए। आपका शरीर यूनिक है, योर बॉडी इज यूनिक। सेंस इट। आपको डेयरी सूट कर रहा है क्या? नहीं सूट कर रहा तो हटा दो ना। किसी से पूछने की जरूरत क्या है? आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई दुनिया में थोड़ी है। आपसे, आपके शरीर से ज्यादा कोई बुद्धिमान दुनिया में नहीं है। इफ यू आस्क मी, स्वामी जी मुझे भूख लगी कि नहीं बताओ, व्हाट विल आई से? मुझे कब खाना चाहिए? कम ऑन, क्या बात कर रहे हैं आप? आपके शरीर को मालूम है कब उसको भूख लगी। जब खूब भूख लगे तो भोजन करिए, थोड़ी भूख में नहीं। जब खूब भूख लगे तो भोजन करिए। व्हेन यू आर फीलिंग रियली हंग्री, हैव फूड। Should I eat meat, eggs, this and that? You eat that and see, sense yourself. और अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। 1 year of कुंभक, 1 year do committedly कुंभक and listen to your body. Just it will tell you everything. अब खाने के बाद में फील करो ना, अगले 4-5 घंटे कैसा फील हो रहा है। इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइट, इफ यू आर फीलिंग हेवी, इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, that means whatever you have taken is not good for you.
how you feel within the body, your how you shit, eat and shitting, both goes together. पता चला अंडे खाए और कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर अंडे तो अच्छे नहीं है ना आपके लिए, गर्मी बढ़ गई, इचिंग शुरू हो गई, अच्छा नहीं है ना आपके लिए। क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या कि नहीं सबको 2 अंडे सुबह उठ के? ये अंग्रेजों का फितूर आपके सिर से उतरा ही नहीं अभी तक। गोरे सबसे बेवकूफ प्रजाति है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। उनके जैसा बेवकूफ तो कभी हुआ ही नहीं, मगर हमारे सिर से उनका फतूर गया नहीं। एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज। अमेरिकन ब्रेकफास्ट क्या होता है ना? ऑरेंज जूस तो लेना ही है ब्रेकफास्ट में। क्या बात कर रहे हो? ऑरेंज जूस आपको गर्मी के सीजन में मिलेगा क्या? नहीं नहीं, पैक करके ले लेंगे ना। बस आपने तो शरीर को बर्बाद कर दिया। बिकॉज योर बॉडी ओनली क्रेव्स फॉर वॉट एवर इज द प्रोड्यूस ऑफ दैट टाइम, दैट सीजन। आपका शरीर उसी की डिमांड भी करता है, मगर शरीर की तरफ देख नहीं रहे मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो शरीर देना ही बेकार है, सबको डिमेंटेड बीइंग्स बना देते हैं। ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसे ही स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो बॉडी खत्म करो सबकी, भूत प्रेत ही सही है। फिर बॉडी सेज व्हेन आई वांट टू स्लीप। स्वामी जी किस समय उठना अच्छा होगा? अरे जब आपका शरीर बोलेगा उठने के लिए, वरना तो मैं बोलूंगा तो उठेंगे आप? क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? क्या मैं कुछ अलग बोल रहा हूं? आप लोग सब जानते हैं ना ये सब। यू आर इंटेलिजेंट पीपल। क्या किसी और से पूछना चाहिए? मुझे चिढ़ कब होनी चाहिए? मैं तो बोलूंगा कभी नहीं होनी चाहिए। बट आपका दुश्मन देखा नहीं आपने कि बस कौन रोकेगा चिढ़ को आपके? सो वन क्वेश्चन केम सम टाइम बैक, स्वामी जी किस एज तक सेक्स करना चाहिए? यू आर ऑल ग्रोन अप पीपल, मैं बात कर सकता हूं खुल के। देखो, अगर हार्मोन हाई हो गए आपके बॉडी में तो मैं कौन रोकने वाला होता हूं? दुनिया रोक पाएगी आपको? स्वयं ईश्वर आ जाएंगे तो रोक पाएंगे आपको? उनसे आप मांगो कि आप बस बस ये छुटकारा मिल जाए जल्दी से मुझे। नहीं। बट इफ यू यूज इट प्रॉपरली तो आपके शरीर तक रहता है। अगर नहीं करेंगे तो दिमाग में चढ़ता है। तो दिमाग का तो कभी जाएगा ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा भी होगा तो भी उसके दिमाग में अगर चल रहा है तो खुराफात करेगा, मगर शरीर उसका शायद साथ न दे। तो आप किससे पूछ रहे हैं? आपको अपने शरीर से पूछना चाहिए। सो व्हेन यू सेइंग व्हाट शुड आई ईट, हमने आपको बताया सिंपल टर्म्स में, नेचुरल, रीजनल, सीजनल। एटलीस्ट कुछ हिस्सा आपका भोजन का जो है वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे फल हो गए, सबसे अच्छा फल रहता है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से परेशान है, इन्फेक्शन है, बीमार हैं, आपको मन नहीं कर रहा तो प्लीज ना खाएं, है ना? प्लीज उस समय, जैसे बारिश के मौसम में तो हमें चाहिए कि थोड़ा कुक करके पतली चीजें, खिचड़ी, दलिया, ऐसा ऐसा कुछ लाइट हमको लेना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपका मन कर रहा है, व्हेन योर बॉडी इज सेइंग अरे अमरूद खाने का मन कर रहा है, प्लीज हैव अमरूद, हैव गोवा, है ना? एप्पल ना खाएं क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसा आपको दिमाग में भर दिया। भाई हमारे देश में इस सीजन में एप्पल नहीं होता, और एप्पल होता भी कहां है तो हिमाचल और कश्मीर और इस तरफ में पहाड़ों पे होता। उनके लोगों के लिए जब एप्पल होता है ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए, अगर आपके इन योर नियर बाय
अगर लंगड़ा आम होता है तो वो अच्छा है, अगर लीची होती है तो वो अच्छा है, अमरूद होता है लोकल, एंड दैट इज व्हाट योर बॉडी विल आल्सो क्रेव फॉर. सो डेयरी लेना चाहिए क्या नहीं, आपकी बॉडी बता देगी. आजकल डेयरी के बाद में हेवीनेस होता है, फिर भी हम क्या पिए जा रहे हैं क्योंकि चाय की आदत लगी हुई है. तो थोड़ा सा चेंज कर लो, उसको ट्राई करके देखो. ट्राई इट फॉर फ्यू डेज. आप नॉर्मल डिप वाला, थोड़ा डिप वाली चाय बिना दूध के ऐसा पी के देखो. अगर आपको लगता है इट मेक्स यू मोर फील मोर लाइट, देन इट्स ओके. ठीक है. दर्द के मामले में सहन शक्ति सबसे जरूरी चीज है. योर पेन विल गो not because you take a painkiller. In fact, after taking a painkiller, it will never go in your life. But your pain will go when you will be able to bear it. Because pain is an indication of repair, damage. If you let the body repair and repair the damage, your pain will go. But what we are doing, we are never letting the body repair the damage. क्योंकि जब आप दर्द की दवाई खाते हैं तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर देता है, रोक देता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इन द बॉडी. प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर रिपेयर. तो आप दर्द की दवाई खाते हैं, रिपेयर कभी होने नहीं देंगे. इन यंग पीपल, बिकॉज द रिकवरी स्ट्रेंथ इज हाई, so their recovery strength takes over the side effect of the pill. But with age, you have to increase your recovery strength so that whatever pill that you are taking, the side effect can be handled properly. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट जब करता है आपका शरीर, तो रीजनरेशन सफर करता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रीजनरेशन में हेल्प करता है. आपको ठीक कौन करता है? नाउ somebody said hibiscus is good for liver. Nothing is good for your body. Only what you can handle is good for your body. But लिवर आपकी बॉडी रिपेयर करती है, दवाई नहीं रिपेयर करती. किडनी आपकी बॉडी रिपेयर करती है, कोई दवाई नहीं रिपेयर करती. आप जो आपका हार्ट अगर वीक हो गया, लंग्स वीक हो गए, तो आपका बॉडी रिकवर करता है, कोई दवाई नहीं बनी जो कि इसको रिकवर कर सकती है. इन्फेक्शन, कीटाणुओं को मारने के लिए दवाई लेते हो, शरीर को रिकवर करने के लिए नहीं लेते. शरीर तो खुद को अपने आप को ठीक करता है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, बी इट केमिकल और नेचुरल. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन, केमिकल और नेचुरल, which repairs or increases the strength of repair of your body. It helps so that your body regains the strength of recovery and recovers it. दवाई कोई आपको ठीक नहीं करती है. ये आपकी गलत फहमी है कि मैं ये भोजन करके, आप ऐसा अच्छा भोजन मैं आपको बता देता हूं, वो कर लीजिए और मैराथन दौड़ के दिखाइए. कर पाएंगे? तो अच्छा भोजन करने से आपको, आप में जान आ जाती है मैराथन दौड़ने की? नहीं होता ऐसा. आपको पचाने, आपके योर बॉडी एक्चुअली लूजेस एनर्जी इन डाइजेस्टिंग द फूड. भोजन को पचाने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और आपको उतनी ही ऊर्जा मिलेगी जितनी ऊर्जा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है. नहीं तो बताइए, अच्छा भोजन करके सारे पहलवान क्यों नहीं बन जाते हैं, सारे ठीक क्यों नहीं हो जाते हैं? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ कोई भोजन नहीं बढ़ाता, कोई दवाई नहीं बढ़ाती, कोई, चाहे वो हर्बल हो, केमिकल हो, कोई दवाई नहीं बढ़ाती आपकी स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ आप ही बढ़ा सकते हैं. और आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ कुंभक से ही बढ़ाते हैं. दिन रात कुंभक कर रहे हो आप. 10 किलो वेट उठाना है, कैसे उठाएंगे? हाउ विल यू लिफ्ट 10 kg वेट? हाउ विल यू टॉलरेट 10 kg वेट?
बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोक के उठाएंगे ना 10 किलो, अगर 20 किलो उठाना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए ना? क्या वो बढ़ाने के लिए आपने कोई प्रैक्टिस किया बचपन से? तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाओगे भाई? तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे अपने बॉडी की? इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे? That is why I say there is lot of complex situation, but one thing is for sure that you should be doing is increase the strength factor, the bala of your body. तभी आप उम्र भी बढ़ेगी तो भी इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, तभी आप अपने रिकवरी कर पाएंगे क्रॉनिक डिजीज से, न्यूरोमस्कुलर रीजनरेट कर पाएंगे नर्व्स को, मसल्स को, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तभी आपको खाने में भी मजा आएगा. Haritki, you can continue throughout life, giving a gap of 10 days every 40 days. 40 दिन के बाद या 2 महीना ऐसे भी ले सकते हैं, फिर 10 दिन का गैप दे दें, हरित की पूरी लाइफ ले सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कोलेस्ट्रॉल, somebody asked कोलेस्ट्रॉल. So I'll give you another story. आपके शरीर की एक स्टोरी बताऊं आपको. इसने आपके शरीर का तो कोई वकालत करता नहीं. देखो, मेडिसिन की वकालत करने के लिए कानून बन गए, लॉज हैव बीन मेड अराउंड. वैक्सीनेशन दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे. सी वैक्सीन, जो किसी ने पूछा था वैक्सीन को लेके, सो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय इंडिया. ठीक है ना? 8,000 साल पहले हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन होता था स्मॉल पॉक्स का. अंग्रेज, पता है आपको, अंग्रेज आते थे इंडिया वैक्सीन करवाने के लिए अपने बच्चों को, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगवाने के लिए. मगर आप गूगल करोगे तो क्या पढ़ोगे? व्हाट विल यू रीड इन गूगल? वो हु इज द फादर ऑफ वैक्सीन? एडवर्ड जेनर. हमारे यहां तो वैक्सीन की मां है, वो देवी भी है. क्या नाम है उनका? हैव यू हर्ड ऑफ शीतला माता? हैव यू हर्ड ऑफ शीतला माता? हमारे तो वैक्सीन की देवी है. इन महाभारत टाइम देर इज एविडेंस ऑफ people taking vaccine. आपने पढ़ा है कभी इस बात? बच्चों को एडवर्ड जेनर बताते हैं कि उसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया. हमारा देश साइंटिफिक है, वेस्ट सुपरस्टिशियस है. पूरा का पूरा वेस्ट सुपरस्टिशियस है. हमारे साइंस को ले जाके पैकेज करके हमको ही बेचते हैं. मैथमेटिक्स इंडिया में बना, फिजिक्स इंडिया में, एस्ट्रोनॉमी इंडिया में पैदा हुआ, मेटलर्जी इंडिया में पैदा हुआ, मेडिसिन इंडिया में पैदा हुआ, सर्जरी इंडिया में पैदा हुआ. 70 साल की आजादी, मगर आजाद तो कोई भी नहीं है. सो वैक्सीन में केमिकल मीडियम में अगर आप वैक्सीन डालेंगे तो केमिकल आपके बॉडी में जाएगा, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल. स्पेशली एमआरएनए वैक्सीन जो है वो आपके जेनेटिक्स को बदल देगा, विच इज अ क्रिमिनल ऑन ह्यूमन बीइंग, ब्लंडर दैट दे आर डूइंग. मगर तभी मैं कह रहा हूं वेस्ट सबसे मूर्ख प्रजाति है. उन्होंने फ्री का नोट छाप के हमारी मेहनत को खरीदा हुआ है, दादागिरी दिखा के. वो डॉलर फ्री में छापते हैं, कोई वैल्यू नहीं है डॉलर की, और हमारी मेहनत खरीदते हैं फ्री के नोट से, क्योंकि दादा बैठे हैं ना, गली का दादा, कागज में लिख दिया इतना माल दे दे उसको, तो परचून की दुकान में जाके कागज दिखाएगा, दे देगा, नहीं तो मर जाएगा वो. दिस इज व्हाट इज अमेरिका. आप अभी आंखें खोल ही नहीं रहे. दे डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, दे नो हाउ टू प्रिंट मनी. अभी 10 साल में पता चल जाएगा उनकी औकात, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग टू देयर सेंसेस. तो ये सब अब छोड़िए, लेट्स कम टू कॉमन सेंस. तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की वकालत थोड़ी कर देता हूं. सो योर बॉडी रिस्पॉन्स इन 2 ways. ये प्लीज सभी को समझाइए, आप भी समझिए, सभी को समझाएं, क्योंकि इसमें कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी जानते ही हैं ये बात.
उनको केवल दिखाने की जरूरत। आपका शरीर दो तरीके से रिएक्ट करता है किसी भी चीज के अगेंस्ट में। जैसे आप इफ यू पुट फूड इन योर बॉडी विल डू अ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन यू पुट फूड इन योर बॉडी विल डू डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब काम करेगा ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए काम करेगा, उसको मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन जब खतरा जाएगा आपके बॉडी में तो खतरे से निपटने का काम करेगा ना वो। सो व्हेन देयर इज अ रिस्क इन योर बॉडी इट विल गिव इम्यून रिस्पॉन्स। इतना बात समझ में आता है ना? बहुत सिंपल। सो बॉडी डज गिव two kinds of response: metabolic response, immune response. So when you put food in your body, which is the body is food, it will give metabolic response. When there is something wrong which has gone inside, it will give immune response. इतनी बात समझ में आ गई? So if you put a tablet in your body, what response should your body give? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स और इम्यून रेस्पॉन्स, वन और टू? इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स, वो तो फूड नहीं है ना आपका, तो इम्यून रेस्पॉन्स देगा ना, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स नीचे। एंड दीज टू कम, ये अपने आप को बैलेंस करते हैं। इफ द इम्यून रेस्पॉन्स गो हाई, मेटाबॉलिक गोज डाउन। इफ मेटाबॉलिक गोज हाई, इम्यून गोज डाउन। ऐसे काम करते हैं। इसको कहते हैं होमियोस्टैसिस। So you're putting a tablet in your body. What will happen? Immune response high, metabolic response low. Then your body wants to survive. तो खाना खाना है ना उसको, तो वो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स को ऊपर लाके इम्यून रेस्पॉन्स को बैलेंस करेगा। नाउ यू टेक फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, वो आपका भोजन तो है नहीं। यू थिंक इट्स योर फूड, तो आपने फूड खाया। What will happen more? Immune response, metabolic response. Immune response wants to go high, but metabolic response also wants to go high because it wants to survive. Now there is a tussle. रस्साकसी चल रही है। फिर आपने, डॉक्टर ने बोला खाना खाने के बाद ये 2 गोली खानी है। आपने फट से खाना खाने के बाद 2 गोली और खा ली। शूट, इम्यून रेस्पॉन्स ऊपर जाएगा। अब वो कहेगा ये भोजन नहीं है, दिस इज नॉट फूड, दिस इज पॉइजन। योर मेटाबॉलिज्म इज स्ट्रगलिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। कौन कौन सी बीमारी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? ऑल, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड। अभी रूमेटॉइड के बारे में भी बोलता हूं कि मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स डिविएट हो गया, रीजनरेशन होगा ही नहीं, घुटने घिस गए जी, न्यूरो रीजनरेशन नहीं हो रहा, मसल नहीं रीजनरेट कर पा रहे। करे कैसे? आपका तो भोजन ही नहीं मिल रहा आपके शरीर को। देन ये इम्यून भी बार बार ऊपर जा रहा है ना, फिर बॉडी इज पुलिंग डाउन, बार बार ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब रिस्क है बॉडी के अंदर, तो बॉडी रिस्क से निकालेगा नहीं क्या अपने आप को? फॉर टेकिंग इटसेल्फ आउट ऑफ रिस्क इट वांट्स टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। इसको एक हार्मोन बनाना है, इसका नाम है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल बनेगा कैसे? हाउ विल इट मैन्युफैक्चर कॉर्टिसोल? इट नीड्स कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। To help itself come out of risk, the body wants to create cortisol, make cortisol. For making cortisol, what is the raw material? Cholesterol, triglyceride. So it raises cholesterol level and triglyceride level. Is it good or bad? जो आप स्ट्रेस से बॉडी को बाहर नहीं निकालना चाहते क्या? रिस्क से नहीं निकालना चाहते क्या? अगर निकालना चाहते हैं तो ये कॉर्टिसोल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा। बॉडी इज हेल्पिंग इटसेल्फ टू कम आउट ऑफ द रिस्क, मगर आप नहीं आने देंगे वहां भी। ह्यूमन माइंड, द मोस्ट कनिंग माइंड। नहीं जी, वो भी गलत कर दिया, स्टैटिन खा लो जी, सिम्वास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन और पता नहीं कौन कौन सा स्टैटिन, वो खा लो जी।
इतना ही काफी नहीं था, और टॉर्चर करना बॉडी को। कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके बॉडी का रिस्क कम होता है। क्योंकि उसी से कॉर्टिसोल बनेगा। आपको मालूम है बाहर से आप कोलेस्ट्रॉल दे नहीं सकते बॉडी को, बॉडी हैज इट्स ओन। आपका ब्रेन मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल है, मालूम है आपको। और ब्रेन आपके ऊपर भरोसा नहीं करता क्योंकि आप बाहर से शायद उसको कुछ दोगे ही नहीं, तो इट मैन्युफैक्चर इट्स ओन कोलेस्ट्रॉल। हमारे परंपरा देश में बच्चों को घी और घी में सभी कुछ बनाने की परंपरा थी। इससे आपकी बॉडी का रिस्क कम हो जाएगा। हमने तो दोबारा आपको खिलाना शुरू कर दिया, बट पता नहीं आप में से कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। So cholesterol decreases the risk of your body. That is why in Ayurvedic parampara, if you see, they say even if your body is ready to take even a drop and it can't take more than a drop, take 1 drop of ghee. So adjust the amount according to your body. But cholesterol is not a problem. Stop taking statins. या तो आप जाके, क्योंकि हमने तो आपको दवाई नहीं बताया, तो आप गूगल में पढ़ें, डॉक्टर से बात करें, अच्छे डॉक्टरों से बात करें, ऐसे डॉक्टर से बात करें जिनका नाम लिखा है आपने, वीएम हेगड़े, है ना, ऐसे लोगों, और अच्छे साइंटिस्ट हो, उनकी बातें सुने, तो आपको पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता। आपको मालूम है ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता। 90% ब्लॉक तो 1 महीना पहले भी था, 1 दिन पहले भी था, 2 दिन पहले भी था, 1 हफ्ता पहले भी था। अभी क्यों हुआ? नॉट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग। और अब दोबारा से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉटिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्लॉटिंग आपको बचाने का तरीका है, मगर बाहर हो तो आप खून पूरा बहने से बच जाता है। अंदर क्यों क्लॉटिंग हो रही है? व्हाई क्लॉटिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी? बिकॉज यू हैव क्रिएटेड रिस्क इनसाइड योर बॉडी। फिर से बोल रहा हूं, प्लीज समझिए इस बात को, दूसरों को भी समझाइए। बिकॉज क्या है, कर्म दोष नहीं लेना ना तो दूसरों को कुछ समझाना है, करना है, सभी को बताना है। अंदर क्लॉट गाढ़ा क्यों हो रहा है खून आपका अंदर? क्योंकि रिस्क आ गया ना। गाढ़ा कब होगा खून? जब रिस्क होगा। कैसे रिस्क आ गया? वो जो बचपन से 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, उसको 24-25 पता नहीं वैक्सीनेशन के नाम पे क्या क्या डालते हैं उसके शरीर में, वहां से लेके आज तक की आपकी जर्नी, बताइए कितनी आपने केमिकल बम्बार्डिंग की है शरीर की। कभी तो थकेगा, कभी तो परेशान होगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी विल से ओ एनफ इज एनफ। और कह रहा है कि यार तुम मतलब रिस्क क्रिएट करना बंद ही नहीं कर रहे हो। बट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सो थिकनिंग ऑफ ब्लड हैपन्स बिकॉज टू मच ऑफ रिस्क इनसाइड। अब एस्प्रिन खा लेंगे ब्लड को थिन करने के लिए, अब वो थिक कर रहा है बचाने के लिए, आप उसे बचाने नहीं देंगे क्योंकि आपको खतरा लग रहा है कि भाई हार्ट अटैक हो जाएगा। होगा किसी को नहीं, अगर ऐसे होगा नहीं। देखो कल किसी ने मुझसे पूछा कि डायबिटीज में ये खतरा होगा, मैंने कहा डायबिटीज से मरा कौन है? मुझे एक इंसान बता दो पिछले 100 साल में। डायबिटीज से कोई नहीं मरता, थायराइड से कोई मरता ही नहीं है, मगर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जब आप अपने ऑर्गन को डैमेज करते हैं उससे रिस्क बनता है। सो ये तरीका होता, आपको डराया फिर कुछ बेच दिया आपको। मार्केटिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, मगर ठीक है, आप पैसा देना चाहते हैं अमेरिका को हथियार बना के आप पे राज करने के लिए, आपकी मर्जी है।
मगर अपना शरीर तो मत खराब करो। आप चाहते हैं कि अमेरिका दादा बना रहे या फिर चौधरी बना रहे, तो आप अपने जेब का पैसा दे दो उसको, ठीक है, चलेगा, आप चाहते हो ऐसा, आपकी इच्छा है, मगर अपना शरीर तो ना खराब करें। क्योंकि आप जो दवाई खाते हैं उसका कट अमेरिका को जाता है, वो तो फ्री का बनाता है, वो तो छापता है नोट, दादागिरी कर रखी है उसने। अपना शरीर तो कम से कम ना खराब करें। सो क्या दवाई से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने बॉडी का स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाएं, इसका टॉलरेंस बढ़ाएं, इसका रिकवरी बढ़ाएं, इसका रीजनरेशन अच्छा करें, जितना नुकसान किया है उसको रिकवर करने की कोशिश करें। डाइजेशन इंप्रूव होगा आपका, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, सही सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके, क्योंकि जो फैक्टर आपकी बॉडी का लूज हो चुका है आज के टाइम पे वो है कुंभक फैक्टर, इसलिए कुंभक बढ़ाना आपको सबसे जरूरी है। ठीक है ना? तो जब ऐसा काम करते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस, ये तो अभी मैंने बताया, कितने बार बोलूं मैं, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग, कनेक्ट द डॉट्स दैट आई एम गिविंग यू। जब आपका लिवर 495 मिलीग्राम पैरासिटामोल बाहर निकालेगा, तो निकालेगा कैसे? उसको पानी में घुलो के आपके शरीर के अंदर जो पानी है उसका इस्तेमाल करेगा, और किडनी के थ्रू ही तो निकालेगा। आपका कोई भी टॉक्सिन जो ब्लड में घुला होता है उसका सबसे पहली निकासी कहां से होती है? किडनी से ही होती है। तो आपके शरीर में पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी कहां यूज हो रहा है? मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं हो रहा, डिटॉक्स में यूज हो रहा है, सफाई करने में यूज हो रहा है, और किडनी पे लोड पे लोड, लोड पे लोड, लोड पे लोड डाल रहे हो। कितना सिंपल है समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कनेक्ट द डॉट, बहुत सिंपल है समझना, आपको समझ में आ जाएगा किडनी डिजीज क्यों इतना बढ़ रहा है। और किडनी पे लोड डालेंगे तो वो इसको रोकने की कोशिश करेगा ना, लोड ज्यादा आ जाएगा तो। दैट इज वाई क्रिएटिनिन लेवल, उसका फिल्टरेशन वो रोक देगा थोड़ा। लोड ज्यादा आ गया तो आपके ब्लड में, यूरिन में ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो फिल्टर होके होके रुक जानी चाहिए तो वो निकल जाएंगी। या तो उसकी कमजोरी हो गई, या तो उसने रोक दिया, दो तरीके से काम करेगा। या तो वो फिल्टर कर नहीं पा रहा, इतना लाचार हो गया, या तो फिल्ट्रेशन को रोक देगा। राइट? सो क्योर पिगमेंटेशन, कुंभक करो, पिगमेंटेशन वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। इट्स लाइक एक्यूमुलेशन, पिगमेंटेशन जो है ना, उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। जो अंग्रेजी वर्ड है ना, ये बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। कहते हैं नहीं जी कैल्शियम की कमी है, मुझे बताओ कैल्शियम की कमी, कैल्शियम खा के कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया दुनिया में? एक कंडीशन, एक इंसान बता दो, एक कोई एग्जांपल। तो कैल्शियम की कमी नहीं है, बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा। दिस इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट थिंग्स, है ना? पिगमेंटेशन इज बेसिकली एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि मूव नहीं कर पा रहा कोई चीज। कुंभक करेंगे तो मूव करने लग जाता है, क्योंकि अंदर जोर लगाएंगे तो मूव करेगा ना, पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। सो विद दिस ट्राई टू गो टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स नेचर। आपकी जो एक कहते हैं ना आदत सी बन गई, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर घर में अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो घर में बैठे रहने की जरूरत नहीं, थोड़ा बाहर निकल जाए। क्या आप सभी स्माइल कर सकते हैं? क्या स्माइल कर सकते हैं? अरे जो भी प्रॉब्लम है स्माइल तो कर सकते हो ना, स्माइल तो करो, कोई भी उम्र है स्माइल तो कर ही सकते हैं ना, स्माइल तो करो, कोशिश तो करो स्माइल करने की। हाँ। क्यों नहीं कर रहे आप? करना ही नहीं चाहते। मगर मुझे बताइए, थोड़ा सा मन हल्का करने में क्या लगा? अभी बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या आपका? किस लिए खुश हुए? क्योंकि आप चाहते थे खुश होना। लाइफ इज दिस सिंपल। और कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी चीजें इकट्ठे करके
खुश होने की कोशिश कर, वो खुशी बरकरार नहीं रहेगी. So you know how to handle yourself. You're just not looking there. अपनों का साथ बहुत थोड़े समय के लिए होता है. You must realize this. अपनों का साथ बहुत थोड़ा आज है, बचपन से अभी उम्र निकल गई, पता चला. ठीक है ना? तो पता चला, ऐसे ही आगे भी निकल जाएगा. थोड़ा मौका है. If you keep happiness within you for 24 hours, just for 24 hours, you can come out of any disease in the world. Now that is very difficult. But you should start practicing. नहीं, कम से कम 1 घंटा, कम से कम कुंभक जब कर रहे हैं तो मन में खूब उल्लास लेके करिए ना. उसको भी फिनिश करके यूट्यूब का वीडियो देखना है या काम करना है? नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी करेंगे ना, ये फटाफट फिनिश करने वाला एटीट्यूड है ना, आखिरकार सब कुछ फिनिश करके कहां पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचना है क्या वहां पे? मृत्यु तक जल्दी पहुंचना है क्या? सब कुछ फिनिश कर दोगे तो जल्दी से मृत्यु आ जाएगी. क्या करना है इतनी जल्दी वहां पहुंच के? थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को. नहीं तो वॉट एवर यू डू इट विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन यू. अपने अंदर थोड़ी खुशी रख के अच्छे से कुंभक करें, कोई भी काम करें. इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एक्टिविटीज. आपका मन जो हल्का भारी है वो हल्का हो जाएगा, है ना. हार्ट बीट ठीक हो जाएगा. और थोड़ा टाइम दें अपने शरीर को. चलने में भी आपको धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी. आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी तो चलने लग जाएंगे. जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम दें. टेक अ लॉन्गिश टारगेट. 6 महीने का कम से कम एक टारगेट रखें. इन द नेक्स्ट 6 months यू शुड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. एक गारंटी मैं आपको देता हूं. इन दिस लाइफ इफ यू आर डूइंग कुंभ, nothing will go across life with you, but the kumbhak, the benefit that you have created through kumbhak, it will go along with you. Kumbhak will not only give benefit in this life, it will also benefit you in your next life and next life. So ये वो पुण्य कर्म है जो आपको जितना इकट्ठा कर लेंगे उतना ही हेल्थ बनेगा. ये वो ओजस है जो आप जितना इकट्ठा करेंगे उतना हेल्थ बनेगा, उतनी लाइफ अच्छी होगी, उतना सक्सेसफुल होगी लाइफ, उतनी वैभवशाली होगी, खुशनुमा होगी. मगर ये आपको लाइफ के बियॉन्ड भी कुछ ऐसी चीज देगा जो कोई और चीज नहीं दे सकती. विद दिस विल एंड दिस. ठीक है ना? तो आप लोगों का जीवन खूब वैभवशाली हो, खूब सुखमय हो, खूब प्रसन्न चित्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है. धन्यवाद स्वामी जी. Thank you. Thank you everyone for attending the session. So we end the session here and the recording will be available on your WhatsApp group by today evening. Okay? Thank you everyone. Namaskar. Bye-bye.